Welcome children. Children, the next chapter that we start in this video is accounting principles. Now children, as the name suggests, it includes the basic rules and regulations that are followed while doing accounting activities. तो बच्चों, जब भी आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो बच्चों उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों को प्री अज्यूम करना पड़ता है, कुछ मान के अकाउंटिंग करनी पड़ती है. लाइक इन अलजेब्रा वी हैव लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स. सो सिमिलरली हेयर वी ऑल्सो हैव सर्टन अजम्पशंस, वी हैव सर्टन concepts and we have certain conventions. So children, assumptions are approximately 4 in number, followed by approximately 6 concepts and 4 modifying principles which are called as conventions. So children, as we know that accounting is the language of business, every businessman for the purpose of recording his business activities need to be well versed with the language, and that language is the language of business which is known as accounting. So children, we say that in this language we record business transactions that take place during accounting period. Now what is accounting period children? It's very simple to understand. A period of 12 months during which we do business and we record our activities accordingly. तो children ये भी आप आने वाले एक assumption में ही पढ़ोगे. So children, accounting communicates the results of the business transactions in the form of final accounts. Yes children, you got it correct. Like आप as a student जैसे अपने final result का wait करते हो after final examinations getting over. Similarly, the businessman also communicates his year-round activities or her year-round activities in the form of final results which is called as final accounts. And children, these accounts are made using the principles what is termed as accounting principles. So children, moving further, as we know that with a view to make accounting results understood by all the persons who are interested in understanding the same, in the same sense, it is necessary that we have to follow certain accounting assumptions, accounting concepts, and finally we have developed them as a period of doing business activities in the course of time. तो बच्चों, जैसे हमने साइंस में बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े फिजिक्स में, like we had Newton's third law of motion which says each and every action has equal and opposite reaction. So children, like in science subject, specifically in physics, we have multiple assumptions and theories. Similarly children, in accounting also we have multiple assumptions. So children, these assumptions act like foundation pillars on which the structure of accounting is based. तो बच्चों, अगर आपने ये assumptions नहीं अप्लाई किए तो आपको प्रैक्टिकली अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में बड़ी परेशानी आती है. तो बच्चों, इन्हीं चीज़ों को हम मान के अज्यूम करके कि ये फैक्ट्स हमेशा अप्लाई होंगे, हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं. तो चिल्ड्रन, नाउ वील बी गोइंग थ्रू द 4 बेसिक अजम्पशंस इन विच द फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और वी से बिजनेस एंटिटी assumption. Now children, moving further, what is the meaning of business entity assumption? Children, it simply says कि business एक अलग identity है and businessmen एक अलग identity है. Both are to be treated as separate identities. आप बच्चों ये नहीं बोल सकते कि business जो businessman कर रहा है वो दोनों एक ही हैं. Not at all. Business is different from businessmen. Like I take an example that if you know India's topmost billionaire, that is Mr. Mukesh Ambani, is the chairman of the Reliance Group. So Mukesh Ambani is different and his organization Reliance Industries is different. Even if Mukesh Ambani today leaves the organization as a chairmanship or as a director, it doesn't mean that Reliance Industries will come to an end. Somebody else will come and take over the business activities. So bachcho, always remember, according to this assumption, business is treated as a unit or entity apart. मतलब बच्चों, बिजनेस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेसमैन एक अलग आइडेंटिटी है. आप दोनों को एक नहीं बोल सकते. बिजनेसमैन सिंपली अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है. सपोज चिल्ड्रन, यू गो टू अ नियर बाय शॉप एंड बाय 5 किलोग्राम राइस फ्रॉम द बिजनेसमैन एंड लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द राइस टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव या उसमें कीड़ा लगा था. तो अल्टीमेटली बच्चों, अब जब उस आप शॉपकीपर के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेते हो तो आप उसके बिजनेस को कोर्ट में स्यू करोगे, ना कि शॉपकीपर को. यस, इट इज ट्रू. उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए
nobody would be coming apart from the businessman itself. जब आप लीगल हेल्प लेके बिजनेस को कोर्ट में स्यू करोगे तो बिजनेसमैन ही बच्चों अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने आएगा. बट अगर कोर्ट ने आपको कुछ डैमेजेस सो कॉल्ड अवॉर्ड किए शॉपकीपर को कि भाई आपने गलत राइस सप्लाई किया, पे द पेनल्टी टू द कस्टमर, तो बच्चों बिजनेसमैन अपनी जेब से पैसा क्यों देगा? क्योंकि उसने तो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए. तो अल्टीमेटली अब जो पार्टी लॉस बेयर करेगी दैट इज द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन. तो बच्चों दिस अजम्पशन सिंपली सेज कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेसमैन एज वेल एज क्रेडिटर्स या और लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. तो चिल्ड्रन इट इज जस्ट लाइक बॉडी एंड सोल. चिल्ड्रन आत्मा अलग है, शरीर अलग है. लाइक वी से इन माइथोलॉजिकल लैंग्वेज दैट बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम सोल, सोल इज डिफरेंट, बॉडी इज डिफरेंट. सिमिलरली चिल्ड्रन यू कैन से बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और बिजनेसमैन एक अलग आइडेंटिटी. दैट्स वाई चिल्ड्रन व्हेन द ओनर कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी इनटू हिज बिजनेस, आप उसके लिए भी यूज करते हो टर्म कैपिटल. जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है हम उसको कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वो पैसा भी बिजनेस का अपना पैसा नहीं होता बच्चों. बिजनेस ने बिजनेसमैन से एक ऑब्लिगेशन, एहसान लिया हुआ है. इसीलिए हम बोलते हैं दैट कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. तो बच्चों बिजनेस में जो भी पैसा लगा है वो बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द बिजनेसमैन. तो बच्चों यहां पे ये अल्टीमेट आउटकम निकला दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस. बच्चों हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ना कि बिजनेस मैन के व्यू पॉइंट से. चिल्ड्रन हियर आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. टेक एन एग्जांपल कि आप किसी बिजनेस हाउस में गए और आपने कुछ गुड्स खरीदे. नेचुरली ट्रू वो सेल की तरह रिकॉर्ड होगा. बट इफ अ बिजनेसमैन पर्सनली विंस अ लॉटरी प्राइज, जब तक बच्चों वो इस लॉटरी के पैसे को अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता तब तक हम कैपिटल का जिक्र नहीं करेंगे. बिकॉज विनिंग अ लॉटरी इज अ पर्सनल बेनिफिट ऑफ द बिजनेसमैन एंड नॉट ऑफ अ बिजनेस. तो बच्चों बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं और बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस डिफरेंट हैं. यस, इफ दिस लॉटरी मनी इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, नेचुरली ट्रू तब आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे बिकॉज हेयर बिजनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. बच्चों मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है विच विल मेक इट फर्दर क्लियर कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. चिल्ड्रन जस्ट सी आई हैव टेकन अ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स. सेल बच्चों हमने की बिजनेस में 10 लाख की, परचेज 6 लाख की माइनस कर दी तो प्रॉफिट आ गया 4 लाख. अब बच्चों हमने शॉप का रेंट 1 लाख पे कर दिया तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ बच्चों 3 लाख रुपीज. बच्चों ध्यान दीजिएगा 3 लाख रुपीज करेक्ट बिजनेस प्रॉफिट. बट अब ये पैसा बिजनेसमैन जब अपने घर ले जाएगा 50,000 इसने हाउस रेंट पे कर दिया तो ही इज लेफ्ट विथ 2,50,000. चिल्ड्रन दिस 2,50,000 इज रॉन्ग प्रॉफिट वेयर एज करेक्ट प्रॉफिट अमाउंट्स टू रुपीज 3 लाख ओनली. तो बच्चों यहीं से आपको पता लग जाएगा बिजनेस डिफरेंट है और बिजनेसमैन डिफरेंट है. हाउ? सी दिस एग्जांपल चिल्ड्रन. हम रेंट पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज फॉर द बिजनेस. चिल्ड्रन it is named as expense. But children similarly when we have paid house rent of the businessmen, this is not called as a business expense, rather it is called as personal expense. तो बच्चों बिजनेस का जो रेंट दिया वो बिजनेस को बेनिफिट देगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एक्सपेंस. बट हाउस का जो रेंट दिया बच्चों वो बिजनेस मैन को बेनिफिट देगा, बिजनेस को नहीं देगा, तो वी कॉल इट एज पर्सनल एक्सपेंस, दैट इज ड्रॉइंग्स. तो बच्चों यहीं पे प्रूव हो गया कि बिजनेस अलग आइडेंटिटी है और बिजनेसमैन अलग आइडेंटिटी. बिकॉज बच्चों अगर दोनों आइडेंटिटी सेम होती, एक ही मानते, तो दोनों रेंट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्सपेंस. अनलाइक here we have seen कि शॉप का रेंट पे किया तो उसको आप एक्सपेंस की डेफिनेशन में लाओगे, बट हाउस का रेंट दिया तो उसे आप ड्रॉइंग्स की डेफिनेशन में ले जाओगे. Why both the rents are classified as different? एक को एक्सपेंस बोलते हैं, एक को ड्रॉइंग्स बोलते हैं, बट है दोनों ही रेंट. चिल्ड्रन द आंसर इज एक बिजनेस का है और एक बिजनेस मैन का है. तो व्हेन आइडेंटिटीज आर डिफरेंट दैट्स व्हाई इस रेंट को भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया. तो चिल्ड्रन आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर.
So children, I hope so this concept of business entity is quite clear कि बिजनेस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेसमैन एक अलग. इसीलिए बच्चों बिजनेस का रेंट पे किया तो वो एक्सपेंस की डेफिनेशन में आएगा, बट ओनर के हाउस का रेंट पे किया तो वो बच्चों ड्राइंग्स की डेफिनेशन में आएगा. चिल्ड्रन माइंड इट, हम रिकॉर्ड दोनों को करेंगे, बट एक एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड होगा, एक ड्राइंग्स की तरह रिकॉर्ड होगा. यू मे हैव अ क्वेश्चन, सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? चिल्ड्रन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ जाओगे. Children, moving down further to the next principle assumption we have, that is money measurement. Children, this is quite easy to understand. Children, example आपके सामने है. These are two employees in our business organization और दोनों के बीच में बच्चों झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया. अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो हम इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? द आंसर इज वी वोंट रिकॉर्ड इट. व्हाई? बिकॉज इस एक्टिविटी को बच्चों हम मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. चिल्ड्रन, आई रिपीट अगेन, इफ फॉर एग्जाम्पल अ सेल्स मैनेजर इज जेलस विद द प्रोडक्शन मैनेजर, बिजनेस इज बाउंड टू सफर. ऑब्वियस सी बात है, दो मैनेजर एक दूसरे से जलते हैं, एज सच एक दूसरे से सो कॉल्ड उनकी बनती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों बिजनेस विल डेफिनेटली सफर. बट क्योंकि हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में कंपेयर नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इस तरह की एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो दिस कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर कि सिर्फ हम उन्हीं फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. विच कैन नॉट बी मेजर्ड बच्चों आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो चिल्ड्रन, टेक एन एग्जाम्पल दैट यू आर रनिंग अ केमिस्ट शॉप और आपको कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 10,000 की मेडिसिन फ्री में देके जाता है. बच्चों अगर आपने भी उसको आगे फ्री में किसी को डोनेट कर दिया तो कोई मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए मेडिसिन आपको मिलना एज वेल एज आपका आगे फ्री में किसी को डोनेट करना बोथ वोंट बी रिकॉर्डेड. बट चिल्ड्रन, इफ यू हैव परचेज्ड मेडिसिन और आपने किसी ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में उसे डोनेट कर दिया, देन चिल्ड्रन यू विल रिकॉर्ड बिकॉज हेयर इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो बच्चों जिस चीज का मॉनेटरी मेजरमेंट हो हम उसे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जिसका मॉनेटरी मेजरमेंट ना हो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. लाइक बाइंग 20 किलोग्राम राइस फॉर द ऑफिस कैंटीन, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता. बाइंग 20 किलोग्राम राइस फॉर ₹1,000, yes children, this can be recorded because it can be expressed in terms of money. तो बच्चों कोई भी चीज अगर मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है तो भी रिकॉर्डेड, नहीं हो सकती तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बच्चों सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर एक दूसरे से जेलस थे और इनकी लड़ाई हो गई, इसको बच्चों हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. बट लड़ाई में हाथापाई में चोट आ गई एंड देन वी एडमिटेड देम टू अ नियर बाय हॉस्पिटल. एक्सपेंसेस व्हाटसोएवर इनकर्ड बाय द बिजनेस, डेफिनेटली हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. Children, following we have the next assumption, that is accounting period assumption. बच्चों very simple to understand. Like children, आपके स्कूल का शेड्यूल starts on April 1st and ends on March 31st. It is a consecutive period of 12 months, or you can say 365 days, or you can say 1 year. तो similarly children, हम भी जब अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं तो हम इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो कितने पीरियड के लिए मेंटेन करेंगे, दैट इज आंसर्ड बाय एन अजम्पशन कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन. सो द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स मतलब ओनर हिमसेल्फ, द क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, जिसको भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में हमारे इंटरेस्ट है, need periodical reports to know the results of the business as well as its financial position. And children, these are known for a period of so-called 365 days or 52 weeks, that is 1 year. और बच्चों इसी को we call as accounting period. So children, like we have a standard accounting period of a school or any educational institution of 1 year, similarly children, we have the accounting period of business also which lasts for a period of 1 year. तो बच्चों हम भी जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग करेंगे दैट विल बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 कंप्लीट ईयर, और यही बच्चों हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है. In India, generally children, we start our accounting year on April 1st, which ends after 12 months on March 31st.
So children, following the next one, the last in the category of assumptions is going concern assumption. Now children, going concern assumption is also an important assumption. ये accounting के basic assumptions में आता है बच्चों, as I told earlier as well. बच्चों, going concern का simple सा मतलब है जब भी आप business start करते हो, you do not have any wish कि हम इसको जल्दी से बंद कर देंगे. We assume that business once started will continue to run for a very 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 long life. So as per this assumption, business will exist for a longer period and transactions are recorded from this viewpoint. तो बच्चों, जब भी हम बिजनेस सेटअप करते हैं, वी अज्यूम कि हम इसको बहुत ईयर्स तक चलाएंगे एंड देयर इज नो इंटेंशन, नो टेंडेंसी कि हम इसको नियर बाय फ्यूचर में बंद कर दें. So there is neither the intention nor the necessity to wind up the business in future. तो बच्चों, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो यही सोच के स्टार्ट करता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग लाइफ चलेगा और जल्दी बंद नहीं होगा. अब बच्चों, बिजनेस में आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन को तीन तरह से देखते हो. कैसे बच्चों? पहला है फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. चिल्ड्रन, जो ट्रांजैक्शंस आपने कैश में किए उसमें तो पैसे का लेन देन तुरंत हो गया, तो डेफिनेटली यू विल रिकॉर्ड देम एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि सर जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं इसमें तो पैसे का लेन देन हुआ नहीं, तो सर इसे क्यों रिकॉर्ड करें? चिल्ड्रन, आंसर इज वेरी सिंपल. पैसे का लेन देन आज नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली इट वुड बी टेकिंग प्लेस इन नियर फ्यूचर. एंड एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वी अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू रन फॉर फ्यूचर. तो आज हम उन बातों को भी रिकॉर्ड करते हैं विच हैव नॉट टेकन प्लेस ऑन कैश. क्रेडिट एक्टिविटीज को बच्चों हम इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज दे हैव नॉट बीन कंप्लीटेड टुडे बट इट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर. तो चिल्ड्रन, फर्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. Even those transactions wherein money is not transferred immediately but same shall be exchanged in future will be recorded on the assumption that business will exist in future. हम बच्चों ये मान के चल रहे हैं कि हमने जिसके साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया, कस्टमर दैट इज डेटर और सप्लायर दैट इज क्रेडिटर, फ्यूचर में उनसे पैसे लेंगे या देंगे. तो ट्रांजैक्शन फ्यूचर में जब कंप्लीट होगा तो हम आज से उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे. एक तो बच्चों इससे हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि हमने कितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया जो फ्यूचर में फुलफिल करना है, पैसे लेने हैं कस्टमर से या सप्लायर को देने हैं. तो बच्चों, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंगली बिजनेस क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो जो ट्रांजैक्शन कल को फुलफिल करने हैं विच आर नॉट सेटल्ड टुडे विल बी डन इन फ्यूचर, इसलिए हम इनको भी रिकॉर्ड करेंगे. देन चिल्ड्रन, सेकेंड एप्लीकेशन है गोइंग कंसर्न का. आपने पढ़ा है बच्चों, assets and liabilities were of two types. One was long lived and other was short lived. तो who said कि assets long lived या short lived होती हैं? Neither I nor you. Going concern assumption told us that जिन assets का existence short period के लिए है, cash balance, stock in the business, debtors, हम बच्चों इन्हें current asset बोलते हैं. And those which exist for a long period such as land and building, plant and machinery, furniture, they are classified children as non-current or fixed asset. तो children, you can say कि अगर going concern assumption है तो this assumption only tells us, यही assumption बच्चों हमें dominate करता है कि भाई business will continue for a longer period, but सारी belongings जो business की हैं, assets हैं, जरूरी नहीं कि वो भी बच्चों longer period तक चलें, but जो चलेंगी that is land and building, plant and machinery, furniture, etc. Children, they will be called as non-current, and जो short period के लिए exist करेंगी that is cash, stock, debtors, etc. they are called as current assets. तो बच्चों current assets as well as non-current assets का जो classification है उसको भी बच्चों going concern assumption के basis पे ही हमने classify किया है. अगर बच्चों ये assumption ना होता तो कोई भी चीज करंट या नॉन करंट की कैटेगरी में आती ना, या तो सब करंट होती या तो सब नॉन करंट होती. तो ओनली दिस कॉन्सेप्ट, दिस assumption tells us जिनकी लाइफ शॉर्ट है दे आर करंट और जिनकी लॉन्ग है दे आर नॉन करंट. तो बच्चों गोइंग कंसर्न assumption इज द फादर ऑफ क्लासिफाइंग assets एंड liabilities एज शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पे, इसी assumption के अकॉर्डिंगली हमने assets को क्लासिफाई किया है. So children, moving to the concept further,
सो सेकेंड एप्लीकेशन बच्चों समझ में आ गया गोइंग कंसर्न का। अगर गोइंग कंसर्न ना होता तो शायद करंट और नॉन करंट भी ना होते। तो कभी भी बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग एक प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदा तो बच्चों आप उसे करंट असेट की कैटेगरी में डालोगे, क्योंकि उसका तो बिजनेस ही है प्रॉपर्टी को बाय सेल करना, उसका तो स्टॉक हो गया। बट अगर उसी प्रॉपर्टी डीलर ने अपना ऑफिस बनवाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, ऑफिस विल कंटिन्यू टू बी फॉर लॉन्गर पीरियड, चिल्ड्रन वी विल कॉल इट एज अ नॉन करंट असेट। तो बच्चों जिसकी लाइफ शॉर्ट है वो करंट और जिसकी लॉन्ग है वो नॉन करंट। बच्चों थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द असेट, दैट इज डेप्रीसिएशन। चिल्ड्रन अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप किसी चीज को यूज करते हो फॉर अ शॉर्टर पीरियड, उसकी कॉस्ट को तो बच्चों हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। बट बच्चों जब हम किसी चीज को लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करें तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है जिसे हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ये होता क्या है। चिल्ड्रन आई फ्रेम्ड एन एग्जांपल फॉर योर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। अ मशीन बॉट फॉर ₹3 लाख इन द ईयर 2016। बच्चों हमने 3 लाख रुपए की 2016 में एक मशीन खरीदी जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ हमने सोचा 5 साल वो चलेगी। एक्सपेक्टेड, जरूरी नहीं है, जल्दी भी खराब हो सकती है, बट इट इज एन अजम्पशन। एंड देयर आफ्टर वो कबाड़ में दैट इज स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपीज में बिक जाएगी। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि अगर मशीन 30,000 रुपीज की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल बाद बिकेगी, तो 3 लाख रुपए की मशीन बच्चों हमने 30,000 रुपीज में बेच दी। यस यू आर थिंकिंग करेक्ट। हमें मॉनेटरी लॉस कितने का सफर करना पड़ा बच्चों? 3 लाख की मशीन आपने खरीदी थी, 5 साल अगर आपने यूज करके 30,000 में उसे सेल कर दिया तो चिल्ड्रन योर लॉस इज 2,70,000 रुपीज। अब बच्चों ये जो 2,70,000 का लॉस आपको हुआ है ये 5 इयर्स के टाइम पे हुआ है बच्चों। तो 5 साल में बच्चों अगर आपके बिजनेस ने इस मशीन को यूज किया एंड हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 2,70,000 रुपीज, देन पर ईयर एनुअली हर साल कितना नुकसान वो मशीन आपको देके गई? यस यू थॉट इट करेक्ट। द एनुअल कॉस्ट ऑफ यूजिंग द असेट इज ₹54,000। तो बच्चों 3 लाख की मशीन ली, सोचा कि 5 साल यूज करने के बाद 30,000 में हम इसे बेच देंगे। बच्चों मान लीजिए कि ऐसा ही होता रहा तो आपने 2,70,000 रुपीज अपने गवा दिए विद इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो चिल्ड्रन योर एनुअल लॉस इज ₹54,000। बच्चों ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मशीन 5 साल चली 30,000 में बिक गई तो हमें 54,000 का एनुअल लॉस होगा। तो बच्चों अगर आप अपने एनुअल प्रॉफिट्स में से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 54,000 रुपीज हर साल बचा के रख लो। चिल्ड्रन आई रिपीट, 54,000 रुपीज टू बी सेव्ड आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स एवरी ईयर। अगर आप बच्चे ऐसा काम कर लेते हो तो 5 साल में आप 2,70,000 रुपए बचा लोगे। 30 में अगर 5 साल बाद मशीन बिक भी जाती है तो वापस बच्चों आपकी जेब में 3 लाख रुपए फिर से इकट्ठे हो जाएंगे एंड यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू बाय द न्यू मशीन। तो बच्चों डेप्रीसिएशन का अल्टीमेट मीनिंग होता है कि जो हमने असेट खरीदी हम उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करें ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, हमें कितना नुकसान होने वाला है। उसी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली बच्चों बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से इतना पैसा अलग से सेट असाइड करके रखेगा सो दैट आफ्टर दीज मेनी ईयर्स उसके पास मशीन को रिप्लेस करने के लिए नेसेसरी मनी अवेलेबल हो। तो बच्चों डेप्रीसिएशन सिर्फ हम इसलिए चार्ज करते हैं अपनी असेट्स पे ताकि हमारी असेट यूज होने के बाद जब रिप्लेस करने की बात आए तो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। तो चिल्ड्रन इट्स जस्ट लाइक दैट व्हेन यू वर बोर्न से 16-17 इयर्स अगो, आपके पापा मम्मी ने सोचा होगा भाई ये बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा हमें इसे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लेट अस से किसी महंगी यूनिवर्सिटी में भेजना होगा। एंड टेक एन एग्जाम्पल, उस समय पापा मम्मी ने सोचा कि उस यूनिवर्सिटी की फीस होगी अराउंड 20 लाख रुपीज। तो बच्चों पेरेंट्स ने सोचा 20 साल का टाइम है, आज बच्चा जन्म लिया है, आफ्टर 20 years we'll be sending the child to some good college or university जहां पे 20 लाख रुपए का खर्च है। तो बच्चों एवरी ईयर इफ योर पेरेंट्स
start saving 1 lakh rupees from their earnings, तो 20 years में easily they can accumulate 20 lakh rupees. तो बच्चों वैसे ही depreciation है, जैसे बच्चों पापा मम्मी ने 20 लाख रुपीस easily सेव कर लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी at the time of financing your expensive education. सिमिलरली बच्चों बिजनेसमैन भी जब कोई मशीन खरीदता है वो ये फैक्ट्स दिमाग में रखता है दैट टुडे इफ आई हैव बॉट अ मशीन फॉर रुपीज 3 लाख एंड आफ्टर 5 years वो 30,000 में सेल होगी तो माई एस्टिमेटेड लॉस जो हो सकता है दैट वुड बी 270. 5 साल में अगर लॉस 270 का है तो एनुअल लॉस ऑन यूजिंग द असेट इज रुपीज 54,000. तो अगर आज मैं हर साल अपने प्रॉफिट में से स्टार्ट सेविंग 54,000 रुपीज तो 5 साल बाद हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी, 270 हम बचा चुके होंगे. बाई चांस 30 में असेट बिक भी जाती है, वापस हमारी जेब में 3 लाख रुपीज होगा. ओके, अगर असेट नहीं भी बिकी 30,000 में, एटलीस्ट हमने 270 तो नई असेट को खरीदने के लिए फाइनेंशियली अरेंज कर ही लिया. तो बच्चों डेप्रीसिएशन सिर्फ बिजनेसमैन इसलिए चार्ज करता है ताकि उसको कभी भी अपनी असेट रिप्लेस करनी हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे. So children, after studying thoroughly what is called as 4 basic accounting assumptions, we come down to the next set, that is basic concepts. बच्चों ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग करते टाइम आपको हमेशा अप्लाई करने पड़ेंगे. कहने का मतलब बच्चों दिस इज द गन इन विच यू विल पुट द बुलेट फॉर शूटिंग एट द टाइम ऑफ हंटिंग. So children, these concepts guide us how business transactions are reported. तो बच्चों अभी जो आपने पढ़ा वो आप अप्लाई करते हो और इसको डायरेक्टली यूज करते हो रिकॉर्डिंग में. यस बच्चों, ये भी बोल सकते हो कि जो आपके बेसिक अजम्पशंस हैं वो अकाउंटिंग में काम आएंगे और ये आपको बुक कीपिंग में काम आएंगे. मतलब एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को दोनों ही काम आएंगे. तो चिल्ड्रन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव 4 अजम्पशंस हमने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं. बच्चों पहला है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. लाइक बच्चों न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो बच्चों यहां पे भी यही है. बिजनेस में बच्चों आप कोई भी एक्टिविटी करिए, दैट इज कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, 2 नजरिए होंगे बच्चों. फर्स्ट जिससे बेनिफिट हो और सेकंड जिससे सैक्रिफाइस हो. तो चिल्ड्रन इट इज सेड डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर डबल एंट्री. बच्चों डबल एंट्री यही है, एक एस्पेक्ट जो बेनिफिट देके जाए और दूसरा सैक्रिफाइस. चिल्ड्रन बिफोर आई स्टार्ट विद दिस मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा. सपोज चिल्ड्रन यू गो टू अ कैफेटेरिया और आप 100 रुपीज की एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर करिए. तो चिल्ड्रन व्हाट यू गेट इज अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी एंड व्हाट यू गिव इज अ 100 रुपी नोट. तो बच्चों कोल्ड कॉफी से आपको बेनिफिट हुआ और 100 रुपी के नोट का आपको सैक्रिफाइस हुआ. चिल्ड्रन आई रिपीट, कोल्ड कॉफी से आपको बेनिफिट हुआ और 100 रुपी के नोट का सैक्रिफाइस हुआ. एंड द कैफेटेरिया पर्सन व्हाट हैपेंड विद हिम, उसको बच्चों कोल्ड कॉफी के ग्लास का सैक्रिफाइस है जो उसने आपको सर्व किया एंड 100 रुपीज का उसको बेनिफिट हो गया. तो बच्चों योर बिजनेस बेनिफिट इज समबडी एल्सेस बिजनेस सैक्रिफाइस और किसी दूसरे के बिजनेस का बेनिफिट मे बी योर बिजनेस सैक्रिफाइस. तो चिल्ड्रन आई रिपीट दिस, सपोज यू टेक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी एंड पे 10 लाख रुपी एज फी फॉर डूइंग एन MBA कोर्स. सो चिल्ड्रन पेइंग रुपीज 10 lakh is your sacrifice and studying a 2-year MBA program is your benefit. And for the university, taking rupees 10 lakh from you is a benefit and offering you the service by teaching the course of MBA is called as a sacrifice for the university. So children, all business transactions have 2 aspects. Children, one is called as receiving benefit and other is called as giving benefit. तो एक एस्पेक्ट बच्चों ऐसा जिसमें बेनिफिट मिला और दूसरा एस्पेक्ट ऐसा जिसमें बेनिफिट दिया, दैट इज सैक्रिफाइस. ओके चिल्ड्रन, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस acquires an asset, आपने बच्चों फर्नीचर खरीदा तो अल्टीमेटली फर्नीचर केम टू योर बिजनेस, बेनिफिट मिला एंड कैश आपके पास से गया. तो चिल्ड्रन दिस इज कॉल्ड एज गिविंग ऑफ बेनिफिट. चिल्ड्रन आई रिपीट, हमने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया इज रिसीविंग बेनिफिट एंड कैश गया इज कॉल्ड एज गिविंग बेनिफिट.
सो चिल्ड्रन कंटिन्यूइंग फर्दर ऑन दिस, नाउ टेक एन एग्जांपल कि आपने फर्नीचर को बच्चों क्रेडिट पे खरीदा, तो गेटिंग फर्नीचर इज अ रिसीविंग बेनिफिट, और आपको बच्चों क्रेडिट पे जिसने फर्नीचर दिया, दैट इज आपके सप्लायर ने, उसके ऊपर अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग बेनिफिट। तो बच्चों फर्नीचर का आना इज रिसीविंग बेनिफिट, एंड सप्लायर का आपको क्रेडिट पे फर्नीचर देना, बेचारा त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है आपके लिए, तो इट इज कॉल्ड एज गिविंग ऑफ बेनिफिट। तो बच्चों उसी के बेसिस पे मैंने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस यहां बनाई हैं। द फर्स्ट इज बिलोंगिंग्स इक्वल्स टू ओइंग्स। बच्चों बिजनेस में जो भी चीजें बिलोंगिंग हैं, या तो वो बिजनेस मैन ने बिजनेस को दी हैं या किसी आउटसाइडर ने दी हैं, तो व्हाटसोएवर बिलोंग्स टू द बिजनेस इक्वल्स टू व्हाट is owed by a business. Children, all ownership that the business has equals to all the obligations. जितनी भी चीजें बच्चों बिजनेस की ओनरशिप में है, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, कुछ भी, या तो ये बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया या किसी आउटसाइडर ने दिया, तो बच्चों बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू दीज पीपल। What a business owes, बच्चों जो भी बिजनेस के पास है, it also owes the equal amount to the owners or outsiders. तो बच्चों अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करके, तो we'll say that your business owns 10 lakh rupees cash and equal amount it owes to you, that is the businessman. तो जितना पैसा बिजनेस में आया वो बिजनेस ने अपने ओनर से ही लिया है, तो बच्चों जितना हमारा बिलोंगिंग है उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चिल्ड्रन इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, व्हाट अ बिजनेस ओन्स इक्वल्स टू व्हाट अ बिजनेस ओज। दैट इज असेट्स जो बिजनेस की बिलोंगिंग्स हैं वो किसी ना किसी ने बिजनेस को दी हैं, या तो ओनर ने दी हैं या तो किसी आउटसाइडर ने। नेक्स्ट चिल्ड्रन वी कम टू द पॉइंट, जितने भी बिजनेस के बच्चों बेनिफिट्स होते हैं वो उसके सैक्रिफाइस के बराबर हैं। मतलब अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो आपको बेनिफिट मिला फर्नीचर का, और सैक्रिफाइस आप कर रहे हैं कैश देने का। या बच्चों अगर फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा तो फर्नीचर का बेनिफिट मिल रहा है बच्चों, और जिस सप्लायर ने आपको फर्नीचर सप्लाई किया उसने बच्चों सैक्रिफाइस किया। तो चिल्ड्रन दिस वर्ड बेनिफिट इन इंग्लिश इज कन्वर्टेड एज डेबिट, and the word sacrifice children in English is converted as credit. तो जिस चीज को बच्चों आप बेनिफिट बोलते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, हम उसको बिजनेस की अकाउंटिंग लैंग्वेज में बच्चों डेबिट बोलते हैं, एंड जिसको बच्चों आप बिजनेस की लैंग्वेज में दैट इज टू से सैक्रिफाइस, दैट इज इन इंग्लिश बोलते हो, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज चिल्ड्रन वी कॉल इट एज क्रेडिट। तो बच्चों यहां पे क्रेडिट का मतलब उधार मत समझिएगा, बेनिफिट वर्ड का मतलब डेबिट, और बच्चों सैक्रिफाइस वर्ड का मतलब क्रेडिट। बच्चों बहुत दिन से आपको इसका इंतजार था कि सर डेबिट क्रेडिट क्या होता है। अब बच्चों आई टेक द कैफेटेरिया एग्जांपल, यू वेंट टू द कैफेटेरिया एंड ऑर्डर्ड फॉर 1 ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी। तो बच्चों आपको जो कोल्ड कॉफी मिली दैट इज डेबिट, और जो आपने पैसे दिए इट इज क्रेडिट। चिल्ड्रन आई रिपीट, अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी रिसीव्ड बाय यू इज कॉल्ड एज कोल्ड कॉफी डेबिट, दैट इज बेनिफिट मिला आपको, एंड मनी दैट यू पेड इज कॉल्ड एज कैश, आपके पास से जा रहा है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो बच्चों मनी क्रेडिट हुआ और कोल्ड कॉफी डेबिट हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा डेबिट वर्ड का मतलब अकाउंटेंसी में सिर्फ एक है, दैट इज बेनिफिट, और क्रेडिट वर्ड का मतलब सिर्फ एक है बच्चों, दैट इज सैक्रिफाइस। ओके चिल्ड्रन, दिस वर्ड डेबिट हैज बीन derived from the Latin word debere and credit has been derived from the word credere. That's why बच्चों इस क्रेडरे की स्पेलिंग से CR निकल के शॉर्ट फॉर्म बन गया, एंड डेब्रे की स्पेलिंग में बच्चों आपको नजर आ रहा होगा D द फर्स्ट लेटर एंड R द सेकंड लास्ट, तो बच्चों यहां से DR बना। In no way we see R in the spelling of debit, but we definitely see R in the spelling of credit. But children, when we write it in short form, that is debit and credit, we call it as DR equals to CR. तो बच्चों याद रखिएगा डेबिट का मतलब बेनिफिट एंड क्रेडिट का मतलब सैक्रिफाइस। बच्चों आपके बैंक से मैसेज आता होगा पापा मम्मी के मोबाइल पे, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद रुपीज इतना, तो आप कंफ्यूज होते होगे भाई ये तो मेरे पैसे हैं, क्रेडिट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? बच्चों इसलिए यूज किया जा रहा है
क्योंकि पैसे आपके हैं बट आपकी जेब में नहीं आए, वो बैंक के पास रखे हुए हैं, तो प्रेजेंटली यू आर सैक्रिफाइसिंग योर मनी बिकॉज इट इज नॉट इन योर फिजिकल कस्टडी, इट इज विद द बैंक एज सच। तो बच्चों मैसेज जब आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, इसका मतलब आपके पैसे हैं, ऑब्वियसली ट्रू, बट आपके पास नहीं है, बैंक किसी और के पास है, तो आपने अभी उनका सैक्रिफाइस किया है। तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर डेबिट मींस बेनिफिट एंड क्रेडिट मींस सैक्रिफाइस। तो बच्चों मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है, असेट्स दैट इज बिलोंगिंग्स, जो भी बिजनेस में है, या तो बच्चों ओनर ने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए या आउटसाइडर ने कंट्रीब्यूट किया, कोई तीसरा कंट्रीब्यूट करने नहीं आएगा। तो बच्चों बिलोंगिंग्स को हम असेट्स बोलते हैं, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल, एंड बाहर वाले लोगों से जो आपने पैसा लिया बच्चों वो लायबिलिटी है। चिल्ड्रन सी द एग्जांपल, इफ द ओनर मिस्टर राम कंट्रीब्यूट्स 30,000 इन द बिजनेस, ये जो ऊपर एक इक्वेशन बच्चों आपको नजर आ रही है, ये कैसे बिजनेस में बेनिफिट और सैक्रिफाइस को सैटिस्फाई करती है। बच्चों आपको लग रहा होगा सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चों हम डुअल एस्पेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी बिना इस प्रिंसिपल को फॉलो किए रिकॉर्ड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बच्चों हाउ वील डू दिस, वो तो हमारा अगला प्रैक्टिकल का चैप्टर हमको बता देगा। आप बस अभी इतना समझिए कि डेबिट दैट इज बेनिफिट इन द बिजनेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट दैट इज सैक्रिफाइस, कभी मिसमैच हो ही नहीं सकता। तो बच्चों जस्ट सी, जब आपने 30,000 रुपीज अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया तो इट इज कैश दैट इज कैटेगरी ऑफ असेट, एंड हु कंट्रीब्यूटेड इट, दैट इज मिस्टर राम रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल। Whereas children in this transaction there was nobody the outsider, इसलिए बच्चों कैपिटल के बाद लायबिलिटी में हमने जीरो लिख दिया। Children the next example, if the business of Mr. Ram took a loan of rupees 20,000 from Bajaj Finance, how the equation would be represented? Children see, cash that is जो पैसा आया it is your asset। बच्चों यहां पे कैपिटल कुछ भी नहीं है because owner has not contributed anything, and outsider is Bajaj Finance who has contributed money for our business। तो सैक्रिफाइस बच्चों हमारे बिजनेस के लिए बजाज फाइनेंस ने किया पैसे देकर, जिससे हमको कैश का असेट का बेनिफिट हुआ। तो चिल्ड्रन इट इज क्लासिफाइड लाइक दिस, 20,000 वी हैव टेकन लोन फ्रॉम देम दैट इज कैश, कैपिटल चिल्ड्रन इज 0 एंड आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन इज 20,000। तो अगेन चिल्ड्रन यू सी कि ट्रांजैक्शन में दोनों साइड्स दैट इज द बेनिफिट साइड एंड द सैक्रिफाइस साइड हैपेंस टू बी सेम। चिल्ड्रन द थर्ड एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट गोज आउट इन द सेम मैनर। इफ बोथ द अबव आर कंसिडर्ड, मतलब ओनर ने भी कंट्रीब्यूट किए पैसे बच्चों और हमने लोन भी लिया बजाज फाइनेंस से। लेट्स सी, asset that is cash 30,000 contributed by owner that is Ram and 20,000 contributed by Bajaj Finance that is liability. So children, the total benefit of 50,000 which is derived by the business is contributed as 30,000 by the owner that is capital and 20,000 by the outsider. So children, I hope so this concept of dual aspect is clear कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो 50,000 अगर हमारे बिजनेस ने बच्चों कैश लिया तो 30,000 सैक्रिफाइस किया ओनर ने एंड 20,000 इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड बाय द आउटसाइडर। सो ऑलवेज इट इज बीइंग सेड दैट बेनिफिट्स इन द बिजनेस इक्वल्स टू sacrifices. So children, next in line we have what is called as again a very important business concept, that is revenue realization concept, or children we also call it as revenue recognition concept. Children, again this concept is very important for determining the profits. ट्रू प्रॉफिट्स जानने के लिए बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो चिल्ड्रन, कंटिन्यूइंग फर्दर टू रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। नाउ सिंपल इट इज टू अंडरस्टैंड। बच्चों आपको यहां पे ये समझना है कि कब आप अपनी प्रॉफिट दैट इज इनकम जो गुड्स सेल करके हुई उसे रिकॉर्ड करोगे। चिल्ड्रन, एज वी सी कि आपने जिस दिन स्कूल में एडमिशन लिया उस दिन से आपकी अटेंडेंस काउंट होती है।
अगर आपने एडमिशन स्कूल खुलने के 10 दिन बाद लिया चिल्ड्रन, तो फर्स्ट 10 days देयर वुड बी नो अटेंडेंस मार्क्ड, बिकॉज टिल दैट टाइम यू आर नॉट अ बोनाफाइड चाइल्ड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. तो बच्चों वही चीज यहां पे भी है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज एन इनकम अर्नड ऑन द डेट व्हेन इट इज रियलाइज्ड. बच्चों लाइन बहुत छोटी सी है बट मतलब बहुत बड़ा है इसका. इस लाइन का मतलब समझने के लिए बच्चों आई हैव टेकन एन एग्जांपल व्हिच वी कंटिन्यू इन अ कपल ऑफ सेकंड्स. Unearned revenue should not be taken. Now what is the meaning of unearned? Earned मतलब जो बच्चों आपने कमाया, आप उसको तो रिकॉर्ड करोगे, बट अगर आपको कुछ पैसे मिले बट वो आपके अर्न किए हुए, दैट इज कमाए हुए नहीं है, तो बच्चों आप उसको अपना प्रॉफिट नहीं बोलेंगे. Why is it so? Because बच्चों जब आपने अर्न नहीं किया और आप अगर उसको प्रॉफिट बोल दोगे तो यू विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. So children, realization concept is very important for determining the income in the accounting period. और बच्चों अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ठीक से अप्लाई नहीं किया तो हो सकता है आपकी इनकम एक्चुअल अर्नड से ज्यादा बुक्स में रिफ्लेक्ट हो. तो चिल्ड्रन सी टू दिस एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बच्चों पहला अकाउंटिंग पीरियड है फ्रॉम 1st of April 2019 till 31st March 2020. And children, your second accounting period is from 1st April 2020 to 31st March 2021. 12 months. Children, example goes like this. Example A में हमने पहले goods sell किए और उसके बाद बच्चों हमको पैसे मिले हैं. The example goes like this. Goods sold worth rupees 15,000 on 24th March 2020. Yes children, 24th March 2020 is the date जो इस सेशन के अंदर आएगी. And customer has paid cash to us on 12th April 2020. Yes children, this date will be falling in the second session. तो children, as we know, हमने goods sell किए in the first accounting session, but पैसे बच्चों हमको next session में मिले. ये बच्चों पहला एग्जाम्पल है. चिल्ड्रन, कमिंग डाउन टू द सेकेंड एग्जाम्पल. फर्स्टली मनी इज रिसीव्ड एंड देन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर. चिल्ड्रन सी टू इट. इट सेज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर रुपीज 15,000 ऑन 24th March. बच्चों आपके कस्टमर ने आपको 24th of March को कैश दिया है. चिल्ड्रन रिमेंबर 24th of March को. The date will fall in the first session, that is here, in the first session. Then children, हमने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किए 12th April 2020 को. The date falls here. तो बच्चों गुड्स सेल करने की डेट सेकेंड सेशन में है, whereas कैश मिलने की डेट बच्चों फर्स्ट सेशन में थी. तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए. इन एग्जाम्पल ए पहले गुड्स बिके हैं फिर कैश आया. इन एग्जाम्पल बी पहले कैश आया और फिर गुड्स बिके हैं. अब बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है, कब हमने प्रॉफिट अर्न किया? यस चिल्ड्रन, मेजॉरिटी ऑफ यू मे बी गेसिंग, सर जब हमको पैसे मिले तब हमने प्रॉफिट अर्न किया. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल प्रॉफिट इज अर्नड ऑन 12th of April and in the second example profit is earned on 24th of March. No children, you are wrong, because assumption concept revenue recognition says what? According to this concept, income is earned on the date when it is realized. इसका मतलब है बच्चों हम प्रॉफिट अर्न करने की बात उस दिन करते हैं जिस दिन हमने गुड्स सेल किए, ना कि हमको जिस दिन पैसा मिला. तो चिल्ड्रन, रिसीविंग मनी is of secondary importance to our business. Primary importance is that ownership of goods gets transferred when. ओनरशिप गुड्स की बच्चों जिस डेट को ट्रांसफर होगी उसी डेट को हमारे राइट्स खत्म होंगे और नए बायर के ये राइट्स मिल जाएंगे. तो बच्चों ये राइट्स जब नए बायर को मिल जाएंगे तो वो ओनर होगा, हम नहीं होंगे. तो चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेट ऑफ सेल एंड नॉट द डेट ऑफ रिसीविंग कैश. तो बच्चों here we go, the date on which profit is made. Children, the first example, it is called as 24th March. But children, in the second example,
it is called as 12th of April. तो children always remember revenue that is realize कब हुआ, जब गुड्स बिके या जब पैसे आए. Yes children, the answer is जिस डेट को गुड्स बिके उस दिन हम मानते हैं कि रेवेन्यू रियलाइज हुआ, ना कि जिस डेट को हमारे पैसे आए हैं. तो रिसीविंग ऑफ मनी इज नो कॉन्सेप्ट टू से कि प्रॉफिट हुआ, बट जिस दिन ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर हुई दैट इज द डे जब हम अज्यूम करेंगे कि हमें बच्चों प्रॉफिट हुआ है. तो डेट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द डेट व्हेन वी हैव अर्न्ड प्रॉफिट एंड नॉट द डेट ऑफ रिसीविंग कैश. So children, I continue further with my second question. Determine the year in which profit is made. Children, in the first example, profit is made in the year 2019-20, and children, in the second example, profit is made in the year 2020-21. So children, it is just like that कि अगर in a hospital you can say a particular baby is born at the midnight, say 1:20, रात में 12 बजे के बाद जो 1:20 आया, 1:20 पे उस बच्चे ने जन्म लिया, तो बच्चों उसका डेट ऑफ बर्थ कल का होगा ना कि आज का. बट एज पर मैथोलॉजिकल इश्यूज जब सूर्योदय होता है देन ओनली वी कंसिडर अ न्यू डे एज सच. तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, हमको डेट से इंपॉर्टेंस रखनी है. ओके, सूरज कब हुआ वी आर लीस्ट बॉदर्ड विद इट. तो बच्चों 24th March 2020 if the date of sale is, तो profit is earned in the year 1920, and if the date of sale is 12th April 2020 then the profit is earned in the year 2021. तो children, I hope so revenue recognition principle is clear. Profit is earned जब goods की ownership transfer होगी, goods sell होंगे, ना कि जब आपको cash मिला. So children, for the purpose of true determination of profit, it is important to know the date on which goods are sold and not the date on which cash is received. बच्चों cash मिलना is a secondary importance, prime importance is हमने sale कब की है. तो children, with this we move further to the next concept, that is historical cost. बच्चों ये भी simple है एकदम. बच्चों दिस कॉन्सेप्ट सिंपली सेज कि जब भी आप कोई असेट खरीदते हो, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट असेट पे अप्लाई होता है, तो आप उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे करोगे. बच्चों टेक एन एग्जांपल कि 5 लाख रुपीस का एक लैंड आपने खरीदा, बट कुछ टाइम के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख की है, बट आपने बेचा नहीं है, तो आप उसको 5 लाख ही रिकॉर्ड करोगे. बच्चों आप 8 लाख रुपीज रिकॉर्ड नहीं करोगे बिकॉज दैट इज टोटली इमटेरियल फॉर अस. चिल्ड्रन, आई हैव टेकन एन एग्जांपल. हमने एक मशीन खरीदी बच्चों 10 लाख रुपीस की. द परचेज प्राइस इज 10 लाख. उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30,000 था और उसको सेटअप कराने में 20,000 रुपए लग गए. तो बच्चों वाइल अकाउंटिंग मशीन की कॉस्ट इज 10,50,000 रुपीज. तो बच्चों बुक्स में आप 10,50,000 रिकॉर्ड करोगे उसकी कॉस्ट एंड नॉट 10 लाख. वाई? बिकॉज 10 लाख इज ओनली इट्स रॉ परचेज प्राइस, वेयर एज उस मशीन को सेटअप करके चलाने में 10,50,000 रुपीज लगा. तो चिल्ड्रन, एज पर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट इट इज सेड कि असेट विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट दैट प्राइस विच इज इनकर्ड, मतलब जिसको हमने खर्च किया, टिल दैट असेट बिकम्स यूजेबल. उस असेट को इंस्टॉल करके प्रोडक्टिव सिनेरियो तक लाने की जो उसकी कॉस्ट थी कि उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तब तक बच्चों जो कॉस्ट खर्च की हम उसे उसकी कॉस्ट बोलते हैं, ना कि सिर्फ उसकी परचेज प्राइस. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, असेट विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट विच इट इज पुट इनटू इट्स यूजेबल कंडीशन. उसकी प्राइस क्या है मतलब नहीं, उसकी कॉस्ट उसको यूज करने लायक बनाने में कितनी लगी हम वो मानते हैं. तो 1050 इज द कॉस्ट चिल्ड्रन एंड नॉट 10 lakh. So children, we further proceed with the next concept, again a very important one, matching concept. Yes बच्चों, सुन के लग रहा होगा सर किस शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर मैच करेगा. बच्चों शर्ट और ट्राउजर मैच नहीं कराना है. अगेन ये कॉन्सेप्ट आपके ट्रू एक्सपेंसेस को डिटरमिन करता है प्रॉफिट निकालने के लिए. चिल्ड्रन, आई रिपीट, रेवेन्यू रिकग्निशन ओनली टेल्स व्हेन प्रॉफिट इज अर्न्ड. व्हेन, कब आपने कमाया.
whereas matching principle will tell how much is earned. तो matching the revenue earned during the accounting period with the cost associated with the period to ascertain the results of the business is called matching concept. तो बच्चों again I tell you, matching concept will tell us कि हमने कितना पैसा कमाया, whereas revenue recognition will tell us when we have earned. तो बच्चों it is said that this is the basis for finding accurate profit, as I have said just now. कितना कमाया will be told to you by matching concept, but कब कमाया will be told to you by revenue recognition principle. तो बच्चों यहां पे भी मैंने दो एग्जाम्पल लिए. फर्स्ट एग्जाम्पल पहले देखेंगे. बच्चों 30,000 के गुड्स हमने खरीदे, आउट ऑफ विच 22,000 रुपीज के गुड्स हमने 28,000 में बेच दिए. नेचुरली ट्रू, पूरे 30,000 के गुड्स तो सेल नहीं हुए, इसलिए ऑल गुड्स डिडंट गिव अस प्रॉफिट. सिर्फ 22,000 रुपीज के गुड्स ने बच्चों हमको प्रॉफिट दिया. सो देयरफॉर ये जो 6,000 रुपीज का प्रॉफिट है ये कैसे कैलकुलेट हुआ? इट इज कैलकुलेटेड व्हेन वी आर मैचिंग, दैट इज कंपेयरिंग revenue of 28,000 with the cost of 22,000, resulting into a profit of 6,000. So children, I repeat, matching का मतलब ट्राउजर एंड शर्ट की मैचिंग नहीं है बच्चों. आप अपने रेवेन्यू को अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड इन द मार्केट के साथ कंपेयर करते हो बच्चों, एंड यू गेट प्रॉफिट. द रिमेनिंग 8,000 वर्थ ऑफ गुड्स, बिकॉज आपने 30,000 के गुड्स खरीदे थे बच्चों, आउट ऑफ विच 22,000 के गुड्स आपने बेचे थे, तो 8,000 के गुड्स जो बचे दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक. सो चिल्ड्रन, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कैसे ट्रू प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे. रिमेंबर, हमने 30,000 के गुड्स को 28 में नहीं बेचा, whereas हमने 22,000 के गुड्स को बच्चों 28 में बेचा है. तो मैचिंग इज डन ऑफ द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट. Children, the second example is a shop was taken on a monthly rent of 4,000 rupees. Yes, children, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 12 months का रेंट is 48,000 and the amount paid to the landlord is 56,000. बच्चों आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया हमने कितना एक्सेस पे किया. So children, the amount actually payable during the year, that is 12 months, works out to be 48,000, that is 4,000 into 12. So children, this amount, that is 48,000, represents expense for the business. But हमने पेमेंट बच्चों 56 का किया है. 56 को बच्चों आप एक्सपेंस नहीं बोलोगे, एक्सपेंस इज ओनली ₹48,000, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट उतना ही था. द एक्सेस 8,000 दैट इज पेड, बच्चों इसको हम प्रीपेड बोलेंगे. एंड लैंडलॉर्ड इज इनडेटेड टू अस. एक तरह से लैंडलॉर्ड हमारा डेटर है, क्योंकि उसने पैसे तो हमसे लिए हैं बट कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट हमको नहीं दिया. वो हमको कुछ पैसा ओ कर रहा है, वो हमारा डेटर है और हमको वो अपनी लाइबिलिटी बोलेगा. हमको मतलब बच्चों हमारे बिजनेस को. तो चिल्ड्रन, दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट इज हेल्पफुल फॉर टू थिंग्स. फर्स्ट, टू फिगर आउट ट्रू प्रॉफिट्स, एंड सेकेंड, टू एस्टिमेट योर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेस. तो बच्चों 48,000 रेंट आपको बेनिफिट देगा एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, एंड एक्सेस दैट वी हैव पेड विल मेक द लैंडलॉर्ड इंडेटेड टू आवर बिजनेस. इसे बच्चों आप प्रीपेड बोलोगे. सो चिल्ड्रन, एक्सपेंस की डेफिनेशन में आप सिर्फ 48 को लेके आएंगे, रिमेनिंग इज प्रीपेड. बच्चों नेक्स्ट इन द सीक्वेंस वी हैव थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. चिल्ड्रन, the next we have what is called as full disclosure. It's very easy to understand. It simply says that all necessary business information should be disclosed in the business. हमको कुछ भी hide out नहीं करना है. Yes children, from the old Hindi proverb, झूठ बोले कौवा काटे, हम कुछ भी छुपाएंगे नहीं बिजनेस में बच्चों. सारी चीजों को डिस्क्लोज करेंगे ताकि जो भी हमारी बिजनेस रिजल्ट्स को रीड आउट करे उसको पूरी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के बारे में मिल जाए. Children, traveling down next to verifiable and objectivity evidence concept. बच्चों, I take an example from you only. अगर चिल्ड्रन आपके पास एक टू व्हीलर है, से Honda Activa, हाउ इट इज कंफर्म्ड कि आप उसके ओनर हो? नेचुरली ट्रू, विद द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स. तो बच्चों वैसे ही बिजनेस में हम जब कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, इट इज वेरी नेसेसरी कि हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो अकाउंटेंट विल सिंपली से दैट हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हो सकता है ये कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो.
तो चिल्ड्रन इट इज सेड कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास नेसेसरी एविडेंस हो, लाइक इनवॉइस, कैश मेमो, रिसिप्ट, जो भी कागज होते हैं। तो बच्चों अगर आपने बैंक में मनी डिपॉजिट किया तो यू गेट अ पेन स्लिप. दैट पेन स्लिप इज एन एविडेंस दैट डिपॉजिट्स हैव बीन मेड इन द बैंक. So the principle requires that each recorded transaction should have adequate evidence to support. हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए. For example, कैश रिसिप्ट्स अगर आपको हुई बच्चों, या आपने किसी को पेमेंट दिया, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. दिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल मेक इट क्लियर कि हम बायस्ड नहीं है और कोई फ्रॉडलेंट एक्ट हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया. तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई. अ क्वाइट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि बिना डॉक्यूमेंट के अकाउंटिंग नहीं मानी जाती वैलिड. इट इज टोटली इनवैलिड. So children, next in sequence we have the modifying principles. It says to make the accounting information useful to the interested parties. आपको पता है कौन सी हैं? जो बच्चों ऊपर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और assumptions डिस्कस किए, उनको थोड़ा सा हम अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर लेंगे. नॉट नेसेसरली जो आपने पढ़ा वो कोई थंब रूल है, नो. साइंटिफिकली आप उसको चेंज भी कर सकते हो. लाइक बच्चों पहला मॉडिफाइंग प्रिंसिपल कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल. बच्चों कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा या अजम्पशन पढ़े, अगर उसको बिजनेस में अप्लाई करने से फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है, इट इज बेटर वी शुड नॉट अप्लाई इट. सेकेंड चिल्ड्रन वी हैव मटेरियलिटी प्रिंसिपल. सिर्फ वो बिजनेस एक्टिविटीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, इममटीरियल चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. लाइक हमारा मैनेजर ऑफिस से जा रहा था और रास्ते में स्लिप कर गया, तो चिल्ड्रन सॉरी दिस वोंट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज टोटली इममटीरियल. बट ऑन द वे उसे कोई कस्टमर मिल गया जिसने अपना पुराना उधार चुकता कर दिया, डेफिनेटली वील रिकॉर्ड दिस. चिल्ड्रन कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सिंपली सेज कि जो भी बिजनेस में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस या मेथड्स, कोई स्पेसिफिक मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो ईयर आफ्टर ईयर, वो वैसे ही रिकॉर्ड होंगे बच्चों. उसमें चेंज आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, एल्स आपके रिजल्ट्स मिसमैच हो जाएंगे. बच्चों ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स अकाउंटिंग के स्टार्ट करेंगे. तो बच्चों ये रीडिंग मटेरियल है, आप इसको एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए लर्न करेंगे. बस इसमें इतना ही याद रखिए, द मेथड्स रूल्स विच आर अप्लाइड शुड बी सेम ईयर आफ्टर ईयर एंड दे शुड नॉट चेंज एज सच. एंड चिल्ड्रन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. बच्चों कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सिंपली सेज कि अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में कुछ आने वाले टाइम पे लॉस हो सकता है, तो आप उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लीजिए. बट अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है, डेफिनेटली डोंट रिकॉर्ड इट. चिल्ड्रन आई रिपीट, द प्रिंसिपल सेज रिकॉर्ड नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बट ऑल पॉसिबल लॉसेस. अगर लॉस नजर आ रहा है बच्चों फ्यूचर का आपको अभी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट अगर फ्यूचर का कोई प्रॉफिट नजर आ रहा है तो आप इसको रिकॉर्ड ना करें. टेक इट लाइक दिस कि बच्चों आपको अगर लग रहा है कि गोडाउन में आग लग सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है, तो आप थोड़े से पैसे अपने प्रॉफिट से बचा के रखिए उस लॉस को कवर करने के लिए. इस चीज की आप अकाउंटिंग कर सकते हैं कि हमने इतना पैसा क्यों बचाया है. बट इफ अ कस्टमर कम्स टू योर शॉप, मेक्स सर्टन इंक्वायरीज, कुछ पूछताछ करता है, बट वो आपसे गुड्स बच्चों नहीं खरीद के लेके गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सेल नहीं मानेंगे, एज वेल एज आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे. तो बच्चों कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सिंपली सेज कि बिजनेस में अगर कुछ लॉसेस आने वाले टाइम में आपको लग रहे हो सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए नेसेसरी फंड्स आप अरेंज करिए एंड उसकी अकाउंटिंग भी आप करिए. बट इफ यू फील लाइक कि बिजनेस में आपको कोई गेन होने वाला है, जब तक बच्चों गेन हो ना जाए, इट इज बेटर सेड नॉट टू रिकॉर्ड इट. तो चिल्ड्रन रिमेंबर देयर वर 4 बेसिक assumptions. First was business entity, followed by so-called accounting period, money measurement. Then children we have what is termed as going concern concept. Then children we had in line it was various modifying principles. Thank you.